the new unit start radio pharmaceuticals. Radio pharmaceutical define some terminology utilized in radiopharmaceutical. First one, radiopharmaceutical define the compound or substance which emit the radiation. This is known as radiopharmaceuticals, which is used in pharmacy. Another term, radioactivity, utilize radionuclides, radioisotopes. The radioactivity define the process of emitting radiation by unstable isotope is known as radioactivity. And this type of isotope also known as radiotopic radioactive isotope. The radioactivity is known as the process of emitting radiation by unstable isotope is known as radioactivity. If this type of isotope is known as radioactive isotope. Radioisotope, these are the unstable isotope which are emit the radiation. ये क्या रेडिएशन को इमिट करते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं उनको हम जो है रेडियो आइसोटोप कहते हैं. These are different definitions of radiopharmaceuticals, radiopharmaceuticals, radioactivity, radioisotope utilized in this unit, and other definitions utilized in this chapter. One is isotope. Isotope means the atom of elements which have same atomic number but have different mass number is known as isotope. Isotope क्या होता है? The atom of element which is same atomic number but different mass number is known as isotope, is called isotope. Next definition है half life of radioisotope. Define half life of isotope, radioisotope. It is defined the time required for radioactive isotope to decay to one half of its original value at any given point of time. मतलब the time required for the radioactive isotope to decay to one half of its original value at any given point of time is known as half-life of radioisotope. Another definition is atomic number. Atomic number defined, it is equal to number of proton present in nucleus of its atom. Atomic number क्या होता है? These are, it is equal to the number of proton present in nucleus of its atom. एटम के अंदर जो न्यूक्लियस में जो जितने नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं उसका इक्वल कहलाता है. दिस नोन है एटॉमिक नंबर. मास नंबर क्या होता है? इट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नोन एज मास नंबर. टोटल जितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उनको सबको टोटल कर दिया जाए, सम कर दिया जाए. दिस नोन एज मास नंबर कहलाता है. इट इज ए सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर. Atomic number means it is equal to the number of proton present in nucleus of its atom is known as atomic number. These are the definition used in radiopharmaceutical. They are isotopes, half-life of radiation, half-life of radioisotopes, atomic number, mass number. Mass number is, it is the sum of number of proton and number of neutron is known as. And next point start the unit of units of radiation. Unit of radiation क्या होती है? फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ रेडिएशंस आर. जो रेडिएशन की यूनिट्स होती है, क्यूरी,
millicurie, microcurie, becquerel, electron volt, Roentgens and rad. These are the fundamental of unit of radioactivity के ये fundamental curie जो अपन को यूज करनी unit of radiations. They are utilized curie. Curie means define the quantity of radioactive substance undergoing 3.7 into 10 square centigrade per second. बैरल बैक्यूरल अगर हम एक क्यूबिक के बराबर जो है एक वन क्यूरी इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10 इंटू 10 स्क्वायर वैक्यूरल and one becquerel is equal to the SI unit of activity defined one transformation per second. One becquerel is equal to होता है 2.7 into 10 to the power minus 11 curie and one electron volt is equal to होता 1.6 into 10 to the power 19 joule. One rad is equal to होता है 10 to the power minus 2 joule kilo minus 1 and one Roentgens is equal to होता है 2.58 into 10 to the power minus 4 C kg minus 1. So these type unit are very helpful to determine the radioactivity. The 1 curie is equal to 3.7 to 10 to the power 10 becquerel and 1 becquerel is equal to 2.7 to 10 to the power minus 11 curie and 1 electron volt is equal to 1.4 1.6 into 10 to the power minus 9 joule and 1 rad is equal to 1 rad 10 to the power minus 1 joule kg minus 1 and 1 Roentgens is equal to 2.58 into 10 to the power minus 4 C kg minus 1. These are the curie kg minus 1. These are the unit of radiation. Unit of radiation. ये क्वेश्चन आ सकता है आते हैं तो 1 curie is equal to क्या होता है द define the curie of radioactivity radiations. तो आप ये क्यूरी या वैक्यूरी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं. तो ये 1 क्यूरी इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 वैक्यूअल आपको पता होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, रेड क्या है. तो ये क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं. दीज आर क्वेश्चन अराइजिंग इन मल्टीपल क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट वन स्टार्ट होती है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स. रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स दीज आर defined as time required for radioactive isotope to decay one half of its original value at any given point of time. The half-life of radionucleotide is known as a time required for radioactive isotope to decay one half of its original value at given point of time. These उसकी जो हाफ वैल्यू है उसी टाइम में जो उसके हाफ है वो डिके हो जाए. दिस नोन एज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है. सपोज we have 44 microcurie of radioactivity in given sample of ferric citrate of the solution. Date 136235
6. After 45 days, the half-life of the compound, after first half-life of the compound, in after 45 days, they are reduced half means 50%. They are 32 microcurie, and second half period, next 45 days, they are 16, and next 48 hours they are 8, and next 45 days they are 4, next 45 days they are 2, next 45 days is 1. They are every 45 days, these are reduced to half value of radioactivity. Their definition is same. They understand कि ये जो है रेडियो न्यूक्लियोटाइड हाफ लाइफ जो होती है 45 डेज में 50% माइनस होती चली जाती है. सपोज जब हमारे पास 44 थे 45 डेज में स्टार्ट जब किया था, जब 45 डेज आफ्टर 45 डेज के बाद वो 32 रह गए. उसके बाद जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप थे धीरे धीरे डिके हुए. उसके बाद 45 डेज के बाद 16 हो गए. आफ्टर 45 डेज के बाद जो उसका जो सॉल्यूशन था फेरिक क्लोराइड में, उसमें रेडियो एक्टिव थे, दे आर 8. आफ्टर 45 डेज नेक्स्ट 40 उसकी जो हाफ लाइफ है वो 4 होगी. माइक्रो क्यूरी 50% गिरती चली जाती है एवरी 45 डेज. These are the known as half life of रेडियो न्यूक्लियोटाइड कहलाती है. जैसे इसमें एग्जांपल हमने दिया है फेरिक साइट्रेट जो रेडियो उसकी जो आइसोटोप है वो एवरी 45 डेज में 50% माइनस होता चला जाता है. These are the half life of न्यूक्लियोटाइड कहलाती है. अब आते हैं टाइप ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन जो होती है ये 3 टाइप्स की होती है. अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज. अल्फा रेज एंड बीटा रेज एंड गामा रेज. दीज अल्फा रेज दे आर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड अल्फा रेज हाईली आयोनाइज पावर. जो अल्फा रेडिएशंस होती है बहुत ही पावरफुल होती है, एंड उनमें पेनिट्रेशन पावर कम होती है. पावर आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा होने के कारण वो उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम होती है. जो अल्फा रेडिएशन होती है कैन बी स्टॉप बाय इवन बाय पीस ऑफ थिन. अगर कोई पेपर गलती से भी कोई पेपर आ जाता है तो उसके कारण वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाए, क्योंकि उनमें पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती नहीं है. हैवी नेचर क्योंकि वो भारी होती है. इनको हम यूटिलाइज करते हैं मेडिसिन फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में यूटिलाइज कर. जैसे हीलियम आल्सो यूटिलाइज फॉर मेडिसिन फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में यूटिलाइज किया. अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्या होता है हाईली आयनाइज्ड होती है, आयनाइजेशन पावर होती है. सो दे कैन बी पेनिट्रेशन पावर उसमें कम होती है. सो अगर कोई पीसेस आ जाता है, जब हम किसी में आयोनाइज गलती से अपन डायग्नोसिस कर रहे हैं, कोई पेपर आ गया तो दे आर नॉट पेनिट्रेटेड, क्योंकि ये हैवी नेचर होने के कारण दे आर, ये जो है थिन, अगर कोई पेपर आ जाता है, फाइन पेपर भी आ जाता है तो दे आर इंटरफेयर करती है, दे आर स्टॉप हो जाती है, दे आर नॉट वर्किंग करती है. सो दे कैन बी यूटिलाइज किया जाता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में, यूज इन मेडिसिन फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाता है. जिसमें जैसे हीलियम में पेनिट्रेशन पावर कम होती है. बीटा पार्टिकल जो होते हैं, बीटा रेजेस होती है वेरी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेडिएशन है. बीटा रेडिएशन जो होती है दे आर नेगेटिव चार्ज होता है. जैसे अल्फा पर पॉजिटिव था, बीटा पार्टिकल पर जो चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज.
लेस देन अल्फा पार्टिकल, जिनकी जो आयोनाइज पावर होती है वो कम होती है, किससे? अल्फा पार्टिकल्स। दे आर, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन पावर कम होने का इनकी पेनिट्रेशन पावर 100 टाइम मोर पावरफुल है। पेनिट्रेट बहुत तेजी से करती है बीटा रेडिएशन जो होती है। ये थिन थिन अगर कोई पेपर आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको केवल ब्लॉक बाई एल्युमिनियम प्लेट से ही ब्लॉक कर सकते। दे आर ब्लॉक बाई एल्युमिनियम प्लेट, दे आर नॉट ब्लॉक बाई थिन पेपर, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स थे दे दे आर, उनकी जो पावर थी वो कम थी, पेनिट्रेशन पावर, सो दे कैन बी हाई आयोनाइज्ड, बट ये लेस हाई आयोनाइज्ड पावर होती है, किससे? अल्फा पार्टिकल्स। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है 100 टाइम वो ज्यादा होती है, किससे? अल्फा पार्टिकल्स। एंड ये सिंपल पेपर से ब्लॉक नहीं होती है, दीज आर ब्लॉक बाय एल्युमिनियम प्लेट से ब्लॉक होती है। इनका जो, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल उनका हैवी थी, बट नेग्लिजिबल मास होता है, इसमें ज्यादा भारी नहीं होता, हल्की होती है। इनको हम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में यूटिलाइज करते हैं, जैसे जिसमें आयोडीन 131 आयोडीन 131 यूटिलाइज किया थायराइड डायग्नोसिस के लिए यूटिलाइज करते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। थायराइड डायग्नोसिस के यूटिलाइज करते हैं, अदर रेडी यूटिलाइज करते हैं। दीज आर द बीटा पार्टिकल कहलाते हैं। बीटा पार्टिकल में सबसे बेस्ट होता है, दे आर नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेस आयोनाइजेशन पावर होती है, एंड पेनिट्रेशन पावर वेरी हाई होती है कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स, एंड दे आर नॉट ब्लॉक बाय थिन पेपर, दे आर ब्लॉक बाय एल्युमिनियम प्लेट से ब्लॉक कर सकते हैं। इनका जो हैवी, ये क्योंकि ये वेरी नेग्लेटिव मास होता है, एंड दे आर यूटिलाइज किए जाते हैं डायग्नोसिस। इसका एग्जांपल है आयोडीन। आयोडीन 131 इज द एग्जांपल ऑफ बीटा पार्टिकल। नेक्स्ट वन आता है गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल ना तो नेगेटिव होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं, दीज आर द न्यूट्रल होते हैं। इनकी जो जो गामा पार्टिकल्स होते हैं, गामा रेज होती है, वो लेस आयोनाइजिंग पावर होती है, किससे? कंपेयर टू अल्फा, बहुत ज्यादा लेस होती है कंपेयर टू बीटा से भी कम होती है। बीटा से भी जिनकी जो आयोनाइजेशन पावर होती है वो और भी कम होती है। ये बीटा से इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है 10,000 टाइम्स मोर पावरफुल पेनिट्रेशन पावर होती है, और अल्फा से करें कंपैरिजन तो ये 1 लाख टाइम्स मोर पावरफुल होती है, पेनिट्रेशन पावर होती है, किससे? अल्फा पार्टिकल्स। जब बीटा से 10,000 है तो अल्फा से 1 लाख टाइम्स मोर पावरफुल है। दे कैन बी पास लैड, केवल इसको ब्लॉक करने के लिए एल्यूमिनियम प्लेट आल्सो भी यूटिलाइज, या तो मैक्सिमम इसको यूटिलाइज ब्लॉक करने के लिए यूज करते हैं, लेड लेड प्लेट यूटिलाइज करते हैं, बट सम टाइम एल्यूमिनियम प्लेट आल्सो भी यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि इसकी जो पावर है जो 10,000 मोर पेनिट्रेशन पावर है, किससे कंपैरिजन करते हैं? किससे? बीटा पार्टिकल्स। अगर अल्फा से करते हैं तो 1 लाख मोर पेनिट्रेशन पावर, मोर देन 1 लाख पेनिट्रेशन पावर कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। इसमें जो ब्लॉक करने के लिए, इस रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है लैड प्लेट, या फिर सम टाइम आल्सो यूटिलाइज एल्यूमिनियम प्लेट को भी यूटिलाइज कर लिया जाता है। दे आर यूटिलाइज, दे आर, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में यूटिलाइज करते हैं। दीज गामा रेडिएशन दे आर मोर पावरफुल कंपेयर टू अल्फा एंड बीटा, क्योंकि इसमें जो आयोनाइजेशन पावर वेरी लेस होती है, ये आयोनाइज नहीं करती किसी कंपाउंड से। सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन पावर होती है वो अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल हाईली
आयोनाइज फॉर्म होती है, अगर इनको कंपैरिजन करें, अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें, दे आर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं, बीटा पार्टिकल नेगेटिव होते हैं, एंड गामा रेडिएशन जो होती है वो न्यूट्रल होती है। उन्हें कोई दोनों से कोई लेना देना नहीं है, ये न्यूट्रल होती है। अगर अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फा रेडिएशन जो होती है हाईली आयोनाइज होती है, बट बीटा रेडिएशन जो होती है कंपैरिजन टू अल्फा से कम होती है। ये जो गामा रेडिएशन ये बीटा से भी कम होती है। अल्फा पार्टिकल्स लेस पेनिट्रेशन पावर होती है, अल्फा पार्टिकल्स में वेरी लेस पेनिट्रेशन पावर होती है कंपेयर टू बीटा पार्टिकल्स, and beta particle is more power, 100 times more penetration power to alpha particle, and gamma radiations is 10,000 more penetration power to beta, and 1 lakhs penetration power more than 1 lakhs times penetration power to alpha. दे कैन बी स्टॉप, अगर इसको स्टॉप करना है, कहीं रेडिएशन निकले तो अगर सिंपल पेपर भी लगा देंगे दियर ब्लॉक हो जाएगी, बट बीटा पार्टिकल रिक्वायर एल्युमिनियम प्लेट्स एंड गामा रेडिएशन रिक्वायर लैड प्लेट्स, their gamma radiation require lead plate and also utilize aluminum plates also utilize, and the alpha radiations they are very heavy in nature, क्योंकि ये वेरी हैवी नेचर होते हैं, बट बीटा पार्टिकल इज नेग्लिजिबल मास होता है, बट लेकिन जो है गामा पार्टिकल लाइट वेट होता है कंपेयर टू बीटा पार्टिकल से भी बहुत लाइट होते हैं। इनको हम डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल एग्जांपल है हीलियम, एंड बीटा पार्टिकल है आयोडीन 131 radiations, and gamma particles also utilized for radiations. These are the 3 type of radiation utilized in our